جناب السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ موجود. نصرت صاحب، ایک افسوسناک واقعہ جو کراچی میں ہوا اس سے پروگرام کا آغاز کرنا پڑا ہے. دل بوجھل ہے کہ بہت سارا مالی نقصان ہوا ہے. خدا کا شکر ہے ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، اور اللہ کرے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. انشاءاللہ. ایک لڑکا ہے جس کی عمر 23 سال ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شدید زخمی ہے، 100% جھلسا ہوا ہے. تو اللہ اسے بھی شفا دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. افسوسناک واقعہ جو کراچی میں ہوا. اچھا، اب میں ذرا بڑھوں گا اپنے ٹاپک کی جانب جو آج کا یار ایک ہمارا منٹ اپنے ٹاپک پہ. میں پلیز سوری، آپ اپنے اوریجنل ٹاپک پہ ضرور آئیے گا، لیکن چونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے گزشتہ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ عرصے سے اس پہ مستقل لائیو کوریج ہو رہی ہے. تقریباً اس لائیو کوریج کے لیے مختلف جماعتوں کے رہنما بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے تشریف لا رہے ہیں. عدنان، مجھے ان کو سنتے ہوئے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہی چینل کے اوپر ٹکر چل رہا ہے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کراچی کا برا حال کر دیا. اور کامران صاحب آپ کس جماعت کے کوٹے پہ آئے ہو یہاں پہ؟ ایم کیو ایم کتنے عرصہ بلدیاتی وہ رہی ہے، مالک شہر کراچی کی دہائیوں پہ. اگر جب سانس لینا بھی محال تھا، بوریاں بھتے، اس وقت کہاں تھی بلدیاتی حکومتیں؟ اس وقت کراچی کا کون پوچھ رہا تھا؟ عائشہ منزل کل بنی ہے کیا؟ عائشہ منزل کراچی کی مونیومنٹل ایک پہچان ہے. آپ نے کیا دیا فائر بریگیڈ کو؟ اس سے پہلے کون تھا ضیاء الحق کے زمانے میں میئر؟ جماعت اسلامی. کیا نام تھا ان کا؟ عبدالستار افغانی. عبدالستار افغانی. اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں بھی رہے ہیں جماعت اسلامی کے، جن کا انتقال جنہوں نے الخدمت نعمت اللہ خان صاحب مرحوم، اللہ بخشے. عرض یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں جب اقتدار میں ہوتی ہیں، جماعت اسلامی رہی کراچی کی نمائندہ دہائیوں تک، ایم کیو ایم تو ارے صاحب ہے قائد کا شہر. اور یہ ایک واقعہ نہیں، آج بھی 2 واقعات ہوئے ہیں اور مہینوں میں. یار تم لوگ آخر میں یہ ہوتا ہے. اب آج کل پیپلز پارٹی، لیکن میرے میں گنجان آباد شہر. ارے نہیں یار، کیا دنیا میں اور گنجان آباد شہر نہیں ہے؟ کیا فائر بریگیڈ نیو یارک میں نہیں؟ نیو یارک میں 9/11 سے بڑی کو سانحہ ہو سکتا تھا؟ کس نے آپ پر قابو پایا تھا؟ نیو یارک کے فائر بریگیڈ نے. انہوں نے وہاں کی آرمی کو نہیں بلایا تھا. انہوں نے آج کس کو بلایا؟ پاک بحریہ کے سنارکلز کے لیے. اس لیے یہ ڈرامے لگانے چھوڑے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، بلدیاتی گورنمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ان چیزوں پہ توجہ دیتے؟ اور بعد میں جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جب کوئی دوسرا حکمران ہو. اسی شہر کا واقعہ نا، وہ بلدیہ فیکٹری والا بھی. بھیا میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو مجھے غصہ آ رہا تھا، میں تل ملا رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم سے اگر میں ڈائریکٹر نیوز ہوتا، میں ان میں سے کسی ایک کنیکٹر کو نہ لاتا. نہیں، آج سب نے دکھ کا اظہار کیا. ارے یار جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں، اس شہر کا برا حال ہو گیا. چلو بات تو کرتے ہیں نا نصرت صاحب. دیکھیں نہیں تو جب تم تھے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے حکومت نے قائم رہنا یا نہیں، پیش ہو میرے پاس آ کے 9-0، اور یوں باقی وزراء کو صاحب یہ چھوڑ دیں اس میں لکھ دینا کہ جی جناب یہ ایسے ہی ہے، کراچی کے فائر بریگیڈ کے لیے اتنی گالیاں یعنی گاڑیاں دو، چھوڑا کرو نا. بہرحال اب میں اپنا دل اللہ محفوظ کرے. اور یہ کراچی کا معمول ہے، آج بھی 2 واقعات ہوئے ہر مہینے. کوئی مہینہ ایسا نہیں جب آگ نہ لگتی ہو. سو لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. اب آؤں گا سر میں اپنی آج کے موضوع کی جانب، اور وہ موضوع ہے پاکستانی سیاست کا ایک ایسا شخص جو جب سے پاکستان میں آیا ہے کامیابیاں سمیٹے چلے جا رہا ہے، حضرت نواز شریف صاحب. ایک کامیاب جلسہ کیا لاہور میں اترتے. دیکھو میں پانی پینے پہ مجبور ہوں نا. کیا تم چاہتے ہو میں دیوار سے ٹکر ماروں؟ کیا کروں؟ دیوانہ ہو جاؤں؟ سر عدنان حیدر حقائق سے ہٹ کے بات کرتا ہی نہیں. میں فیکٹس رکھوں گا نا سامنے. وہ جہاز سے اترے جی، پھر انہوں نے ایک بہت عالمگیر ٹائپ جلسے سے خطاب کیا لاہور میں، سفید. اور وہ اتنا عالمگیر تھا اس کے بعد انہوں نے جلسے سے خطاب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. انہوں نے کہا یہ ایک ہی بہت ہو گئے، جلسہ ایک ہی کافی ہے. اچھا آگے اس کے بعد کبوتر آیا. پھر کبوتر کے بعد اور کبوتر کو اڑنے ہی نہیں دیا. پھر اب بتاؤ. میں ایک زیرک سیاستدان کا آپ کو طرز سیاست بتا رہا ہوں. انہوں نے ایم کیو ایم کو اپنے گھر بلا کر کراچی اور سندھ کی سیاست پر اپنے پاؤں مضبوط کیے اور پیپلز پارٹی کو بیک فٹ پہ پھینکا. پھر وہ چلے
सिंध के अंदर। फिर वो चले गए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के सारे इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं गए, वो प्राइवेट होटल जहां वो ठहरे थे, सब इलेक्टेबल्स को बुलाया कि मैं आ गया हूं, आए मेरी बैयत कर लें, सलूट मार। और फिर आज जो उन्होंने वो तुरुप का पत्ता होता है जो खेला जाता है सियासत में, तो आज उन्होंने वो खेला है। पाकिस्तानी सियासत के मरकज हुकूमतें बनाने में जिनका बड़ा अहम रोल रहा है, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले चौधरी शुजात साहब, उनके घर गए 14-15 साल के बाद, और इतलात ये हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है, कमेटी इस मामले को डिसाइड करेगी, और उम्मीद है कि ये मामला हो जाएगा काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का। तो ये सारे हालात व वाकयात बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आपको मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे आपको। देखो, मेरी बात को गलत न लिया करो और ना ही देखने वालों को ये तासुब दिया करो। ज़ाती तौर पर मैं मियां साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर वो चौथी बार भी हो जाएं तो मुझे क्या परवाह करें, ठीक है सर, मैं कौन सा उम्मीदवार हूँ। दूसरा ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मैं तुम्हें बारहा इस शो में कह चुका हूँ कि मेरे बहुत पुराने, मैं यानी कि पहले शनासाई और उसके बाद बहुत कुर्बत रही है। बुनियादी वजह उसकी हबीब जालिब साहब थे, जो रीगल चौक खड़े होते तो कहते चलो यार मुझे मेरे बुर्जुआ दोस्त के पास ले जाओ, चौधरी ज़हूर लाइफ में हूँ, तो मैं तो बेचारा ड्राइवर कमी के तौर पर हूँ, ठीक है जी। लेकिन शायद मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे आदमी झक्की हो जाता है। तो ये मियाँ साहब की, चौधरी साहब के साथ मुलाकात को बहुत बड़ा वाक़या नहीं है पाकिस्तानी सियासत का। ओ यार, बेसिकली ये 3 और 4 MLA की सीटों की बात है, और अगर इजाज़त दो तो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूटो चुकुड़ को ढेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ, आपस में मरने। वे सालिक साहब को तलाक से के बारे में कह रहे हैं, और यार काफ लीग के बारे में अब वो बात नहीं रही मियां मदन सर मेरे सामने की सियासत है, 15 साल पाकिस्तानी सियासत, इनके अरूज के बाद इनकी मोहताज रही, वो पीपल्स पार्टी की रही, वो नून लीग की रही, या वो तहरीक इंसाफ। अदनान भाई, अरूज और जवाल सियासत से जुड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल आज की जो मीटिंग है उसमें सिट्टा ये निकलता है कि सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद हैं, वो गुजरात की बजाय तलागंग से MLA का इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके मुकाबले में नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा, तो वो नहीं खड़ा होगा, ठीक है। और लेकिन नीचे जो 2 MPA होंगे वो फिर नवाज ही देंगे, ये असल मसला है। और वहाँ पे हाफिज अमार यासर का भी एक मामला आना है, और वो बड़ा आगे इन्फ्लुएंशियल ना समझ वहाँ पे अपने। अच्छा, अब ये तो हो गया। ये दूसरी बात ये है कि शाफे साहब जो हैं, आपको याद होगा हम शादी में गए थे लाहौर, तो शाफे साहब, उनकी मेहरबानी अपने वालिद की वजह से, कोई मेरी कोई ऐसी खासियत नहीं, उनके यहाँ से वो सलाम करने आए थे, तो मैंने उनको कहा वो गुजरात के 2 हलकों से जी सूबाई असेंबली की लड़ना चाह रहे हैं, तो खुद जी 2 हलकों से, गुजरात की 2 सूबाई असेंबलियों के हलके से वो बजाते खुद उम्मीदवार होंगे। उसके एवज उन्होंने मांगा होगा कि मियाँ साहब ठीक है आप MLA आप खड़ा कर दें, तो उनका अब असर रौला जो पड़ना होगा या जो पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या कुछ इस तरह के नहीं, वरना सरदार या सातक यहाँ रुक के मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब तो आजकल कमी कमी नहीं समझते, आप जैसे लोगों से, साथियों से बात नहीं करते, आप जैसे नहीं, मैं तुझे भी नाल शामिल हो वो उनके बाद नहीं करते, लेकिन ये कि सरदार या सादिक साहब वहाँ पे कर सकते थे बातचीत कि जी ये हम में फैसले हुए हैं वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जो गड़बड़ कहीं हो रही है वो तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के के हवाले से हो रही है, जो MLA है ना खाफ के, जो तारिक बशीर चीमा तो ऑन बोर्ड है ना, क्या बाबू, उसके नीचे फिर MP, देखो ना, ये तो सुलह सफाई से बाइज़ तरीके से होगी। देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई नतीजा नहीं निकलना। मेरा ख्याल है कि तारिक बशीर चीमा के मामले में को थोड़ी सी MPAs के हवाले से कोई रुकावट है, लेकिन अल्टीमेटली एडजस्टमेंट हो जानी है ना सर। ओ यार, ये अल्टीमेटली पता नहीं क्या होना है, अल्टीमेटली तो कुछ भी हो जाता है, बट दिस इज वेल डन मूव बाय नवाज शरीफ, सियासी मूव अच्छी की। ओ भाई, मूव बहुत बड़ी होती तो ये होती कि वो गए खुद चल के 14 या 15 साल के वक्फे के बाद बिचौई साहब के घर, ज़हूर लाई साहब के घर, ठीक है जी, वहां जैसे ही मियाँ साहब पहुंचे, वहां से वापस आए तो उन्होंने इत्तला दी कि चौधरी शुजात साहब ने फैसला किया कि घर वापस लौटा जाए और काफ और नून मदगम हो रहे हैं, तो खबर बड़ी ये होती, जो कि नहीं है, जो नहीं है, ठीक लेकिन है ना? सारे मैं अगर ये होता तो मैं, बल्कि आज का सारा दिन जो है पता है, मैं यानी पहले वज़ायर कराची का मामला तो हज़ूर डिस्कस करता, फायज़ ईसा साहब ने आज उन्होंने भी
یہ جیسے یعنی کہ 14 سال بعد گئے ہیں تو 13 سال بعد انہوں نے وہ بھٹو صاحب کا یاد ہے آپ کو صدارتی ریفرنس بھیجا تھا آصف علی زرداری صاحب نے بھیجا تھا. ٹھیک. میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اٹس کوائٹ. دیکھو آج تک تاریخ میں 2 مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک کرامبیل کا واقعہ ہوا تھا, اس نے تختہ الٹا تھا. اس کے علاوہ ایک چیک ایک ہیرو تھی چیکوسلاویکیا جو ایک زمانے میں کہلاتا تھا, اب تو چیک ریپبلک ہے نا, تو اس کی ایک خاتون تھی, ان پہ وہاں کی کمیونسٹ حکومت نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی وہ دشمنوں سے ملی ہوئی تھی اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا تھا. ان کے یعنی کہ پھانسی لٹکانے کے بعد ان کو باقاعدہ لٹکایا گیا تھا بھٹو صاحب کی طرح, یعنی رسی یعنی پھندا ڈال کے. تو اس حوالے سے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ایسے ہوا تو یہ عالمی تاریخ میں جی تیسرا واقعہ ہوگا. اگر ابھی بھی آپ کو اگر لگ رہا ہے تو وہ کر دیا وہ بھائی سماعت کے لیے مقرر. ایونچولی کیا ہوتا ہے نا, سماعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. کیا ہو گیا آپ دراصل ریفرنس بھیجا اس حوالے سے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جب آصف صاحب سے میرے بہت پرانی دوستی رہی, آج کل تو سلام دعا سے بھی رہے آپ کی وجہ سے, تو وہ یہ ہے میری وجہ سے یا میرے استاد کی وجہ سے, بنیادی طور پر آپ کی وجہ سے, تو آپ ایسی یعنی کہ مجبور کر دیتے ہیں مجھے باتیں کرنے کو کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو دل کس کو بری گراں گزرتی ہے. بادشاہوں کے دلوں کو کچھ چیزیں پتہ. خیر انہوں نے, میں اچھی بات یہ ہے آصف علی زرداری کی, میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی آج تک مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کہ میں یہ انٹرویو کر دو یا یہ بات کر دو, اور نہ ہی کبھی شکوہ کیا کہ وہ کیا بکواس کی. دل میں رکھا ہو تو لگا. ٹھیک ہے. صرف ایک بات انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے رجوع کیا تھا. اچھا, انٹرویو کے لیے نہیں, انہوں نے اپنے انٹرویو کے لیے نہیں. انہوں نے یہ کہا, مجھے فون کیا, دوپہر کا واقعہ تھا اور دسمبر مجھے یاد ہے تھا اور 2010 تھا. اب تاریخ 12 تھی یا 11 تھی. He was president of Pakistan. As the president of Pakistan contacted me directly from his private number, موبائل سے. میں نے کہا ہلو سر کیسے ہیں آپ؟ کہنے لگے یار ابھی میرے پاس سے اٹھ کے بابر اعوان گیا ہے. بابر اعوان ان دنوں لا منسٹر تھے اور یار وہ روئے چلا جا رہا تھا. اس نے پورا ریکارڈ اکٹھا کیا ہے بھٹو صاحب کے کیس کا, اور وہ یار وہ بہت رو رہا تھا. اس نے کہا جی یہ تو اس میں ریکارڈ میں اتنی زیادتی ہے, یہ جوڈیشل مرڈر ہے. تو وہ مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں صدارتی ریفرنس, تو یار اس کو آج شام اپنے پروگرام میں لے لو. میں ان دنوں آج ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتا تھا, بولتا پاکستان, مشتاق مناز کے ساتھ. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ایک منٹ ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. تو بس وہ میں نے کیا. تو میں نے کہا جی بابر اعوان تو وہاں ڈی ایس این جی وغیرہ بابر اعوان صاحب بزی تھے اپنے کمرے میں. تو میں نے وہاں پہ بیٹھا ہوا, جیسے ہم آن ایئر لائیو ہیں, پھر میں نے ان کو میسج بھیجا, سر میری ڈی ایس این جی وہاں کھڑی ہے, تو اپنے وزیر صاحب کو کہیں جو لوکل گئے ہیں آپ کے پاس میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو نہیں کی انہوں نے, نہیں گفتگو چاہے میں نے کہ رام نیڑے کے کچھ وہ کی, لیکن مسئلہ یہ ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا. لیکن انفارچونیٹلی اپنی صدارت کے دنوں میں تو وہ نہیں ہو سکتا. افتخار چوہدری صاحب انہیں کرنا تھا. اب اگر ہو جائے آپ کو 11 سال بعد جب دوبارہ یہ سامنے آ رہا ہے, 13 میرا خیال ہے یار 2010 آخری سماعت, میں آخری سماعت کی بات کر رہا ہوں. آخری سماعت ہوئی کوئی 12 نومبر 2012 کو. اس کے بعد تو نتیجہ نکلے گا. آپ دیکھتے ہیں نا, دیکھیں ہمیں عدالتی فیصلوں پہ میاں اسپیکولیٹ نہیں بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کا بار بار کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بریک لے لیں. ویلکم بیک نوزر صاحب. جیسے ہم نے انڈیا کو سرپرائز دیا تھا, میرے لیے بھی اسی طرح کا آپ کے لیے سرپرائز ہے خاص طور پہ. آپ کا میری محبت ایسی ہے نا سر. سر دیکھیں آپ کو تو پتا ہے میرے اندر ایک صحافیانہ تجسس پایا جاتا ہے, اور میں رکتا نہیں ہوں. مطلب کسی بھی موقع پر اگر مجھے بات پتہ چل جائے, جیسے کل شو کے اختتام پہ آپ نے ایک شرلی چھوڑی تھی نوشہرہ والی کے دونوں این اے پہ, پرویز خٹک اور چاروں پی پی پہ بھی, پی کے پہ بھی ان کے پاس. تو وہ شرلی میں نے ری چیک کی, وہ ٹھیک تھی. تو میں صبح اٹھا اور میں پہنچا نوشہرہ ان کے حلقے میں, پرویز خٹک صاحب. نہیں آئی اپریشیٹ ہے. نہیں آپ یہ دیکھو, نہیں جہاں پہ تعریف کی بات ہے بابو, تو میرے خیال میں آپ آئی ایم ناٹ اے تھینک لیس پرسن. کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ تھینک لیس ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ سناتے ہیں جی کیا کہا نوشہرہ کے لوگوں نے. پرویز خٹک صاحب کا گاؤں ہے, ان کا اپنا گاؤں, ان کا اپنا حلقہ. سنائے جی اسد صاحب. مسلم لیگ کو, مسلم لیگ نون کو دیں گے. نون کو نہیں, اے این پی سے نون لیگ میں کیسے آ گیا آپ؟ بس ان کا تو پہلے بھی حکومت ادھر چل چکا ہے 2 دفعہ. اچھا یہ تو پرویز خٹک کا حلقہ ہے. ہاں یہ پرویز خٹک ہے کہ بیکار خٹک کا ہے نا. نہیں بلکہ بیکار کیا تھا, نہیں عمران جیل میں پڑا ہوا ہے نا, یہ لوگ اس کے پیچھے بیانے دے رہے ہیں. آپ پرویز خٹک کا نام کیا لیا آپ نے؟ وہ بس بیکار جو بھی ہے. ووٹ شیر کا ہے, بس شیر کو دیں گے.
अख्तियार वली साहब, इख्तियार वाली साहब जिंदाबाद। इंशाल्लाह परवेज़ खटक साहब को देना है। मुझे ये बताएं, ये उनका अपना आबाई हल्का भी बनता है? ये इनका आबाई हल्का नहीं है, इनका आबाई हल्का जो है ना वो है मानकी शरीफ काका हल्का साहब। तो एक ही बन जाता है ना, एनए का। एक ही बन का नहीं है, एनए का बन जाते हैं, पीके का बन नहीं जाता है। पीके का इधर जो है एमपी मुस्लिम लीग नून का एमपी है और परवेज़ खटक इधर से इलेक्शन नहीं लड़ा है। परवेज़ खटक अपने इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं इंशाल्लाह। इस दफ़ा भी जो इमरान खान भी खड़ा हो जाए ना, फिर भी इंशाल्लाह पखान सा बिहारेगा और परवेज़ खान साहब जीतेगा इंशाल्लाह। किसको नहीं देना, इतनी नाराजगी क्यों और सर? किसको नहीं देना, इतने नाराज क्यों हैं आप? बस नहीं देना, नहीं आपको वजह तो हो ना, मैं तो आपको नहीं देना। हमारा कोई इमदाद नहीं करेंगे, वो किसको देंगे? खटक साहब, परवेज खटक साहब कहते हैं बड़ा काम, वो कोई नहीं देगा, उसको खुद दे देंगे नहीं। बाकियों को नहीं देना, खटक साहब को तो बिल्कुल ही नहीं देना है। हाँ। तो आपके हल्के से तो परवेज खटक साहब, वो तो पार्टी के सरबराह हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। तो अभी तो सरबराह है, पहले तो पीटीआई का था, जब पीटीआई था वो था तो अभी भी हम वोट देते पीटीआई को। अच्छा, आप परवेज खटक साहब को देंगे ना, उनकी भी पीटीआई है ना? हाँ, तो पीटीआई जब हमारा खान साहब के साथ ताल्लुक है, खान साहब किस पीटीआई के, तो हम पीटीआई के। तो आप परवेज खटक साहब वाली पीटीआई को वोट नहीं देंगे? नहीं पीटीआई। कहाँ के रहने वाले? नौशहरा। अरे नौशहरा में तो परवेज खटक साहब ने पार्टी अपनी बनाई है, आपके इलाके के खड़ा करेगा उसको देंगे। नहीं, आपके इलाके की पार्टी बन गई ना पीटीआई पार्टी। बनेगी लेकिन वो जो खड़ा करेगा उसको देंगे। खटक साहब ने बहुत काम किया यहाँ किए लेकिन इमरान खान को देंगे। अब तो उन्होंने अपनी जमात बना ली ना यार। नहीं होना, क्या मसला हो गया? लोग कहते हैं सड़कें बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, स्कूल बनाए। जेब से तो नहीं बने ना, जेब से तो नहीं बने ना। उसको वज़ीर आला किसने बनाए, किसने बनाए? सर पुरानी बात होगी, आगे चलते हैं। अब तो नहीं, पुरानी बातें, बस खट्टर साहब भी पुराने हो गए ना। अब किसको वोट देंगे? जी प्राइवेट नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे? हाँ इंशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैंने उचराट की रहने वाला हूँ। तो मुझे ये बताएं, परवेज खटक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कोई बात नहीं, उसने तो किया, उसका दौरान है। अब नवाज शरीफ साहब का हाँ बिल्कुल सही तरीके से दे दूंगा। खटक साहब को नहीं देना? नहीं, क्यों? बस नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत? मुहब्बत तो है ना, इसी वजह बोलता हूँ ना, और बात नहीं करता हूँ, बस ये बात करता हूँ। चोटा नटन आदमी है, सही आदमी है। नवाज शरीफ टनाटन आदमी है। हाँ बिल्कुल। तो चले गए थे मुल्क छोड़ के बाहर। वो तो कोई बात नहीं, उसका तो बस किसी वजह से चला गया, तो कहना ऐसे तो नहीं चले गया। हाँ ऐसे तो वजह से नहीं करने गया था, सेल करने। सैर करने? करने तो गया था, ये बात है। वो तो उसका कोई नहीं है, उसका पाकिस्तान है ना, कहना कोई प्रॉब्लम तो आते है ना। नो बस अल्लाह ताला उसको खुश रखे। वोट किसको देंगे? वोट देना नहीं चाहिए जी। इतनी यहाँ बैठ जाऊँ? इतनी नाराजगी क्यों? इधर नाराजगी, इधर देखो ये गरीबों का क्या हाल है, ये अपने लिए घर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना, गरीब के आपके मेरे मसले हल होंगे, हम वोट देंगे। सारे मालदार हैं, इसलिए मालदार हैं कि कोई पूछता नहीं है। गरीब होता ना और गरीब के पीछे भागता। ये सारे अमीर हैं माशाल्लाह, हम सारे अमीर हैं। क्यों? हम गरीब ज़रूर अपना सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने लिए क़ुव्वत के लिए कमाते। महंगाई के बारे में कोई नहीं सोचता है। सारे वज़ीर आलम के पीछे भागते और अपनी मुसलमान भाई के पीछे कोई नहीं भागता कि यार ये इस आदमी का क्या हैसियत है। हर हुकूमत आती है, अपने लेन देन करके चले जाती है, और गरीब आदमी को कोई ये नहीं बोलता कि यार इसके भी 4-5 बच्चे होंगे, कि इनको भी यार देखभाल का क्या हिसाब है, इनका पूछना चाहिए। थोड़ा आटा का खाता है। बेनज़ीर के दौर में हम 220 रुपए का खाता था। अभी भी बेनज़ीर हमें कुछ न कुछ दे देते हैं। हम परवेज़ को क्या करते हैं, नवाज शरीफ को क्या करते हैं, वो दूसरे को क्या करते हैं, गोली मारो इनको। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, परवेज खटक आपके हल्के से हैं। किसी को हमें नहीं चाहिए, वही बेनज़ीर चाहिए, वही हमें पुराने पीपल चाहिए। पीपल पार्टी जिंदाबाद। परवेज खटक ने जुमात बना ली, लेकिन उसने मतलब सही बंदे को चूज़ नहीं किया ना। जो उसके साथ सही बंदा खड़ा था, जिसने उसको वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दिफा बनाया, मुश्किल हालात में उसने इमरान खान का हाथ साथ छोड़ दिया। उससे अच्छा तो परवेज इलाही है। तो परवेज साहब को अगर पिछला इलेक्शन देखा जाए तो उसी इमरान खान की वजह से जीते थे। अब तो उन्होंने अपनी जमात बना ली, अब तो वो जीत जाएंगे। मुश्किल है, बहुत काम किया, उनका अपना इलाका है, अपना घर है। काम है सर, आप ये देखें ना, ये काम होता है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नौशहरा कैंट। अरे नौशहरा का बंदा तो परवेज खटक को वोट दे, उसका शहर क्या? खत्म हो गया, इमरान खान है ना। परवेज खटक साहब उन्होंने जमात बना ली अपनी, खत्म कहाँ हुआ? खत्म, वो जमात खत्म हो गई उसकी। आप नौशहरा में कोई नया काम मुझे बताएं कि भाई कैंट में बता दें। कैंट में बताएं।
کہ بھئی اس نے یہ کام کیا. 5 سال وزیر اعلیٰ ایک بندہ رہا ہو تو آپ پھر وزیر دفاع رہا ہو. 5 سال شیرپاؤ بھی وزیر اعلیٰ رہا ہے اور اس نے جا کر اس کے علاقے کو دیکھ کے سر چمک رہا ہے. 5 سال دورانی وزیر اعلیٰ رہا ہے, اس کے علاقے کو جا کر چیک کریں. 5 سال ہوتی رہا جان مردان سے اسلام آباد بنا دیا, وہ بھی وزیر اعلیٰ. مجھے نوشہرہ میں کوئی چینجنگ بتائیں کہ نوشہرہ میں کیا چینجنگ ہوئی ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ باہر آ جاتے ہیں, جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے پھر اندر کھوٹوں میں بڑھ جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ادھر مہنگائی دیکھو, ادھر سب کچھ دیکھو, کون یہ دیکھے گا؟ یہ صفائیاں دیکھو, یہ گند سارا پڑا ہوا ہے, کون دیکھے گا؟ تو پرویز خٹک صاحب آپ کے شہر کے پرویز خٹک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرا پارٹی سے ہے. اس نے کوئی کام نہیں کیا. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, میں یہیں کا باشندہ ہوں, کاکا صاحب کا علاقے کا ہوں, اور کوئی کام اس نے نہیں کیا. صرف اپنے گاؤں میں کام کیا, باقی نوشہرہ میں یہ جو 30 سال پہلے نوشہرہ تھا وہی نوشہرہ ہے, کوئی کام نہیں کیا اس نے. 5 سال وزیر اعلیٰ رہے. 5 سال وزیر اعلیٰ تھا, میرا خیال اس نے 9 سال حکومت کیا, مگر اس نے کوئی کام نہیں کیا نوشہرہ میں. آپ دیکھ لیں, آپ چکر مار لیں, ہمارا نوشہرہ کا کوئی مالک ہی نہیں ہے. سر جب نوشہرہ لوگ مین انٹرسٹ پہ آتے ہیں نا, جب ان ہوتے ہیں نوشہرہ, سب سے پہلے وہ اسٹیشن روڈ وہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے, اور باتیں چھوڑیں. مین جو نوشہرہ آپ لوگ ابھی آپ اسلام آباد میں دیکھتا ہوں برا حال ہے, صحیح. تو میں صرف وہی والا روڈ دیکھ لیں اور چھوڑیں کہ نوشہرہ آپ لوگ آئیں اور آپ بولیں کہ یہ نوشہرہ کالے کہ ہر جگہ اس طرح. خٹک صاحب تو 5 سال پہلے وزیر اعلیٰ تھے نا, تب تو کام کرایا ہوگا انہوں نے. کب کہاں ہوئی آپ کے سامنے ہی. مریم نواز کو. مریم نواز کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو؟ جی. نون لیگ سے اتنا پیار کیوں؟ بس یا اختیار ولی سے پیار؟ اختیار ولی سے نہیں ہے, بس صرف مریم نواز کو ووٹ دیتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں دیتے. کس کو دیا تھا ووٹ سر آپ نے؟ ووٹ کس کو نہیں دیں؟ ارے یار ووٹ تو دینا چاہیے. ووٹ نہیں دینا, بس پیدا نہیں ہے. ہم تو مولانا کو دینے. مولانا صاحب کو دینا؟ ہاں. پرویز خٹک صاحب؟ اور پرویز خٹک تو چور ہے, لوٹا بن گیا, لوٹا ہو گیا. پرویز خٹک صاحب کیونکہ آپ کے شہر سے ہیں, آپ کے علاقے سے ہیں. ہم تو صحیح پوچھیں جانتے بھی نہیں ہیں صحیح طرح, بس لوگ کہتے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں ان کے جو بنو کا ریسنٹ ابھی جلسہ ہوا تھا تو وہ ان سے کیمرہ مین پوچھتے ہیں یا جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ خٹک صاحب یہ کرسیاں کیوں خالی ہیں, تو وہ کہتے ہیں نو کمنٹس. یار میں کیا بتاؤں, ادھر تو ابھی 5-6 پارٹیاں کھڑے ہوئے ہیں, تو ابھی کس کا پتہ نہیں لگے کون جیتے گا کون ہارے گا. دیکھیں گے کس کو دیں گے, دل تو نہیں چاہتا ہے کسی کو بھی دے دیں. دل کیوں نہیں چاہ رہا آپ کا یار, اتنا دل آپ کا بد دل ہو کیا گیا؟ کرے یار, یہ لوگ ابھی ہمارا حالات دیکھو, اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہے, کوئی اسی کے لوگوں کی وجہ سے نا. ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ پی ٹی آئی کو. کس کو دیا تھا؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی پرویز خٹک والی؟ نہیں مارا, خدا کے بندے معاف کرو. معاف کیسے کرو, وہ پرویز خٹک کی جماعت یاد دیکھو یار. ہمارا لیڈر جو ہے انشاءاللہ وہ نکلے گا, جو قید میں ہمارا ووٹ ان کو ہی جائے گا. وہ جس مرضی کو کھڑا کر دیں ووٹ ان کو دیں گے. جس کو مرضی کو کھڑا کر دیں انشاءاللہ ووٹ اس کو ہی دیں گے. سر مجھے یہ بتائیں کس کو دیا تھا ووٹ؟ پہلے جناب میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اور اب کس کو دیں گے؟ اب انشاءاللہ جو ہے تو اے این پی کو دوں گا پہلے. ناظرین ہم موجود ہیں, توصیف علی صاحب ہمارے مقامی نمائندے ہیں نوشہرہ کے. نوشہرہ ذرا یہ بتائیے توصیف بھائی کہ کیا صورتحال ہے, کیا پرویز خٹک صاحب اپنی جماعت بنا چکے ہیں, یہاں اپنی اسٹرانگ روٹس رکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے جو الیکشن حلقہ ہے اس کا اعلان کیا تھا, NA 33 سے اور PK 87 اور 88 سے وہ الیکشن لڑیں گے. اب جو ہم اس وقت موجود ہیں وہ جو ہے یہ پرویز خٹک صاحب کا حلقہ ہے. ان کی کمپین کی حوالے سے بتائیں تو انہوں نے پچھلے 1 ماہ کے دوران وہ کمپین میں کافی زیادہ دلچسپی ان کی ہو گئی ہے اور وہ اب جگہ جگہ کمپین کی. پورے نوشہرہ میں کہ جو 4 صوبائی اور 2 قومی اسمبلی, ان میں انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا. یہ انہوں نے خود پچھلے دنوں ایک جلسے میں اعلان کیا تھا کہ میں اس دفعہ جو ہے اپنے گھر سے سب کو الیکشن کے لیے کھڑا کروں گا. ان کے بیٹے ہیں 2, وہ جو ہیں 2 صوبائی سیٹ وہ لڑ رہے ہیں, 2 جو ہے پرویز خٹک صاحب لڑ رہے ہیں, اور ایک جو NA کا سیٹ ہے وہ اس پر جو ہے ان کے داماد لڑ رہے ہیں. انہوں نے مطلب پورا نوشہرہ شہر جو ہے وہ سارا ان کے گھر میں ہے. یہ جی موروثی سیاست ان کا ایک, میرے خیال میں جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے تب بھی وہ تھے, کیونکہ ان کے بیٹے جو تھے وہ یہاں پر ناظم تھے. پرویز خٹک صاحب کا گھر ہے یہاں پہ اس جگہ پہ. اور پرویز خٹک صاحب کا گھر ہے ادھر, مگر اس ٹائم پتہ لگے گا جس کو دینا ہے نا اس کو دے گا. ناظرین مانکی شریف کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا گھر ہے یہاں پہ, تو کس کو دیں گے ووٹ؟ پرویز خٹک کو دیں گے لازمی, ان کا حق ہے, انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے خدمت کی ہے. جو اس بندہ سمجھدار ہے خاص کر مانکی کا, ان کا حق ہی ان پہ ہے, ہم پر ہے. ووٹ کس کو دیا تھا؟
वोट तो मेरे 47 साल उम्र हो गए, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दी। अब किसको देंगे? अब किसी को भी नहीं। ये आपके हमसाए हैं परवेज खटक साहब, उन्होंने पार्टी बना ली है। नहीं, वो पार्टी मार्टी बनाए तो कुछ भी नहीं होता। या बात सुनिए, तो उनका मतलब मानकी शरीफ के रहने वाले हैं वो। उसके इलाके है, लेकिन उसके इलाके के लोग खफा है उससे। क्यों? बस कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो इसलिए खफा। अरे इतना अच्छा रोड बनाया, जबरदस्त रोड पे चल के आया हूँ मैं। तो रोड पे क्या है, रोड तो हमारे गाड़ी चलाते हैं तो टैक्स पे बनते हैं ना, इसका अपने घर से थोड़ी लेके आते हैं। ये जगह जो है, ये जगह जो है वो परवेज खटक साहब का घर है ना यहाँ, तो यहाँ तो उनको जीतना चाहिए। मुश्किल है ना, अपने घर से हार जाएंगे। हार देंगे। वोट मौलाना साहब को दे दें। और इस दफ़ा किसको देंगे? मौलाना साहब को दे देंगे। ये तो मतलब मानकी शरीफ तो घर है ना परवेज खटक साहब का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बड़ा काम कराया खास तौर पे मानकी शरीफ। काम दोस्त नहीं किया, वो बस मौलाना साहब को वोट देते। परवेज खटक को नहीं दे? नहीं, उसको नहीं देते। इमरान खान को दिया था, लेकिन गलती की थी। गलती की थी? गलती की थी। पीटीआई को वोट देके गलती की आपने? बिल्कुल गलती की थी। तो अब किसको देंगे? किसी की भी नहीं देंगे। भाई वोट किसको दिया था? वोट हमने परवेज खटक को। अब किसको देंगे? अभी भी परवेज खटक को देगा। मुझे साहब अभी तो बहुत थे, लेकिन टाइम की बड़ी कमी है। मानकी शरीफ जहाँ उनका घर है ना, ये वो जगह है। कोई 13 बंदों का किया, एक बंदा। देखो मेरे लिए इसमें दो बातें जो मैं तुम्हें कहूँ बड़ी हैरान कुन है। यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के आप किसी से भी बात करें ना, तो वो ये कहता है कि नहीं साहब, KPK तो आप भूल जाए, KP में तो स्वीप करेगी PTI, कोई हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन वहाँ पर आपको देखिए कि खुल के पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI सर, आपको वो तो है, पीपल्स पार्टी को लोग बड़ी उम्र के याद कर रहे थे, हमें असली वाला पीपल पार्टी चाहिए, और बेनज़ीर वाला, हमें बेनज़ीर के पैसे आज भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस बात का लोगों को नाराज नहीं, फर्ज करो यहाँ पे कोई एक अच्छा तकड़ा आदमी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खड़ा हो जाए, तो वो इस तरह के लोग कैटर कर सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि बाकायदा एक मरियम नवाज का भी जिक्र आपके साथ बंदा कर रहा है, वो नून लीग की भी आपको बात आ रही है, एक बड़ी वहाँ पे ना। देखिए, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ, जिस पे आपकी इस तारीफ के बाद थोड़ा सा गिला, वो ये कि आप कहना चाहिए कि अच्छा भी ठीक है, तुम PTI को वोट देना चाहते हो, तुम्हारे ख्याल में कौन यहाँ से खड़ा हो रहा है, ये तुम्हारी खबर होती है। अच्छा, कि लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन शख्स बिलाखिर जुर्रत और हिम्मत दिखा के और बल्ले का निशान लेकर जो है वो परवेज खटक के मुकाबले में खड़ा होगा। उसमें मैं कहता, अभी कोई नाम नहीं सामने आया। नहीं, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए ना, वो 2-3 लोगों को, कोई एक नाम लेता, कोई दूसरा लेता, कोई तीसरा, लेकिन अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, देयर इज नो कैंडिडेट, बट वोट बैंक वहाँ पे। एक ब्रेक। नाज़रीन, नौशहरा आने से पहले हमने परवेज़ खटक साहब से रब्ता भी किया था कि हम उनसे भी बात कर सकें, क्योंकि वो एक तो पार्टी सरबराह भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, और उनका अपना शहर है, उनका अपना हल्का है, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट नहीं भी की, बट हमने बहुत ट्राई की। यहाँ के रिपोर्टर ने भी रब्ता किया, मेरे प्रोड्यूसर ने भी, पर वो उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो हमने यहाँ पहुँच के परवेज़ खटक साहब से हमने कल रब्ता किया था, और आज हल्के के सर्वे के दौरान हमने जो नून लीग के उम्मीदवार हैं अख्तियार वली साहब, सर एक तो वार्म वेलकम, आपने टाइम दिया हमें। अख्तियार वली साहब परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं 2 हलकों पे। NA 33 और PK 88 से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इनको हमने सडन पकड़ा है, ये इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे, और इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें रास्ते में जो है वो टाइम दे दिया है। सर, क्या हालात देख रहे हैं आप, क्योंकि बड़े एक उम्मीदवार से आपका टाकरा है, एक वो शख्स जो पार्टी का सरबराह है उससे आपका टाकरा है, जो वज़ीर आला रहा 5 साल के PK का, 4 साल वो वज़ीर दिफा है, तो ही इज़ अ बिग कैंडिडेट अगेंस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ की टीम को मैं नौशहरा अहमद पे खुश आमदेद कहता हूँ, आपको और आपकी तमाम टीम को। दूसरा, आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए मैं इतना कहूँगा कि परवेज़ खटक कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है। ही इज़ नॉट अ बिग गन, ही वाज अ मैन, ही वाज अ पपेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ये मैं तो अक्सर आपके शोज़ में आकर कहता था कि तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली वॉज बीन ब्रॉट इन, तब्दीली लाई गई थी। और परवेज़ खटक जो है ये काउंसलर बनने लायक बंदा नहीं है, ये तो फिर बाद में कुछ इमरान खान का वो वोट बैंक बन गया, जिसकी ना आँखें हैं, ना कान है, ना उसमें कोई दिमाग है, ना कोई सोच है, ना विजन है। वो इसकी एक वाहिद सपोर्ट थी, वो नहीं रही तो परवेज़ खटक अगर 4 बार भी इकट्ठा हो जाए, मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं इसकी ज़मानत ज़ब्त कर सकता हूँ। आप माजी देखें, माजी को झुटलाया नहीं जा सकता, वो एक शख्स ज़रूर हैं, बट वो इस वक्त एक पार्टी के सरबराह हैं, और अख्तियार वली इसका मुकाबला पार्टी सरबराह से, पूरी पार्टी का बैक है उनके साथ। ये जिस तरह पार्टी उनकी है,
इस तरह पार्टी मैं सुबह बना के रात को तोड़ सकता हूँ और अगली सुबह नहीं बना दूंगा। ये कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, वो मैं समझता हूँ। ये और महमूद खान, ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों में इनकी हैसियत वगैरह वगैरह से ज़्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। मुझे याद है कि आपने इन्हीं की हुकूमत में, इनके दौरान आपने इनको शिकस्त भी दी थी। बट अब सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। उनके पास लोगों से वोट मांगने का बड़ा उनके पास एक टूल है कि मैं वज़ीर आला रहा, मैंने इतने सारे काम किए, मैं बतौर वज़ीर बहुत सारे काम किए होंगे। आपकी जमात की परफॉर्मेंस पे लोग सवाल पूछेंगे, फिर आपसे सवाल पूछेंगे, तो मुश्किल तो होगा लोगों से वोट मांगना। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ मैं हर किस्म के मौसम में, हर किस्म के हालात में मैं अपने पब्लिक में रहता हूँ। और मैं इस शहर में आप जहाँ जाएंगे तो आपको लोगों से ये सुनने को मिलेगा कि मैं सिर्फ अपने हलके नहीं, मैं वो हलके जिनको परवेज़ खटक वीरान छोड़ गया था, वहाँ से इसका बेटा MPA था, वहाँ से इसका दामाद MNA था, वहाँ से इसका दूसरा बेटा तहसील नाजिम था, ये ख़ुद जिस हलके से MNA था, मैंने 5 हलकों की खिदमत की है। मैं सारे हालात में लोगों के बीच में रहता हूँ। ये तो भाग जाते हैं, ये तो इस्लामाबाद होते हैं, वहाँ आते जाते 15,000 का पेट्रोल लगता है और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो ये कहते हैं कि वो तो इधर नहीं है, वो तो नौशहरा गए हैं। नौशहरा में इनका घर नहीं है, नौशहरा में इनका हुजरा नहीं है, यहाँ इनका दफ्तर नहीं है। अब इलेक्शन आ गया, इन्होंने तंबू लगा दिया है, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तंबू उठा के चले जाएंगे। ये तंबू लगाया, हुजरा नहीं है इनके पास। तंबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किराए का घर या किराए की बिल्डिंग लेके इसको तंबू तो ये भी कहते कि पुराने ट्रांसफार्मर आपने ठीक करा के अपना वो इलेक्शन पे तो हर बात में ये वज़ीर आला रहे हैं, ये नए ट्रांसफार्मर अपने गिनवा दें। मैं तो पुराने लगा के लोगों की बिजली बहाल करता हूँ ना। मैं तो अपने शहर के, अपने ज़िले के लोगों को यहाँ पर मैं ग्राउंड की बात करते ना। एक बात, मैंने यहाँ पे बिला तफरीक मैंने ईद के दिन परवेज़ खटक के हुजरे का ट्रांसफार्मर भी चेंज करके दिया है। मैंने PTI के MPS को भी ट्रांसफार्मर दिए हैं। जब इनके घर के, मेरे घर का जलता था तो ये लोग बिजली भी बंद कर देते। सर ग्राउंड, आपने सवाल किया परवेज़ खटक लोगों से कैसे वोट मांगेगा, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि परवेज़ खटक ने मतलब ऐसे क्या उन्होंने नहीं किया कि लोग अख्तियार वली को तो वोट देंगे और परवेज़ खटक को नहीं देंगे, जो वज़ीर आला रहा, जो 4 साल वज़ीर रहा। यहाँ पर ये सारे ये आम पब्लिक बैठी हुई है, आप इनसे पूछ लें, बाहर जाके पूछ लें, वज़ीर आला से कोई बड़ा ओहदा होता है सूबे में? नहीं होता। वज़ीर दिफा का जो स्टेचर है वो कोई छोटा ओहदा है, बहुत बड़ा होता है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई लोग तो उसको वोट देंगे ना, अख्तियार वली को क्यों देंगे? कह रहा हूँ, सूबे का सदर हो, वज़ीर आज़म के इतने करीब हो, और आप अपने ज़िले में एक नया कॉलेज नहीं बना सके, आप एक नया अस्पताल नहीं बना सके, आपने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। बस ये यहाँ थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। मैं गया हूँ ना उनके हल्के, तो वो जो उनका गांव है, सॉरी, तो इतनी ज़बरदस्त सड़क थी जो पहाड़ चढ़ती उनके गांव घर तक गई, बड़ी ज़बरदस्त सड़क बनी हुई थी। अगर आप यहाँ पर करेक्शन कर लें कि ये CPEC के रोड्स हैं जो निज़ामपुर तक गए हैं, और ये यहाँ इस मोटरवे के साथ भी बने हैं, इसमें परवेज़ खटक का कोई कमाल नहीं। मतलब वो जो एक सड़क यहाँ बनी हुई है उसमें भी आप उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते? मैं क्यों, मैं तो उसको भाई, मैं ऑन द फ्लोर उसको असेंबली में कहता होता था कि आज मैं घर से नीयत करके आया हूँ, मैं आज आपकी तारीफ़ करने आया हूँ, कोई अच्छा काम अपना बताओ अगर आपने किया है। उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, मैं कहाँ से तारीफ़ करूँ? अगर मैं परवेज़ खटक का नाम लेते ही अदनान भाई, सबसे पहले BRT का जिक्र वो जहन में आता है, मालम जबे का स्कैंडल, बिलियन ट्री का, तो ये तो ऑफ कोर्स चलते रहेंगे। अच्छा, ये परसेप्शन है लोगों में। आप नौशहरा की बात करें, यहाँ पर 3 डैम हैं, 3 डैम, ये मैं आप रिकॉर्ड पे ले आए। एक का नाम शाह कलीम है, एक का नाम गुलडेरी है, एक का नाम मरोबा है। एक डैम पर 10-10, 12-12 अरब रुपए खर्चा आया है, और एक डैम में एक कतरा पानी नहीं है, ज़ाया कर दिया उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं क्योंकि हल्का फिर के आया हूँ, वहाँ एक परसेप्शन ये है कि लोग जो वोट नहीं देना चाहते परवेज़ खटक साहब को, वो इसलिए नहीं कि अख्तियार वली मुकाबले में, उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कहते हैं कि ये तो हमारा वोट तो तहरीक इंसाफ का था। तो तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक है, अख्तियार वली उनसे कैसे मुकाबला करेगा? तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पर है, सही। यहाँ पे वो देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज और फोर्सेस होती है ना, उनका वोट बैंक हर जगह होता है। कहीं पे 500 होता है पूरे हलके में, कहीं पे 5000 होता है, कहीं पे 6000 होता है, कहीं पे 4000 होता है, वो होता है।
लेकिन उसको आप डिसाइसिव वोट नहीं कह सकते हैं। बट वोट बैंक है। देखें भाई, सवाल पे भी आप धीमे हो गए सर। लोगों का मानना ये है कि आप ऑफ कोर्स आज अभी पेपर्स जमा होने हैं और आप अभी से कैंपेन में हैं। लोगों का मानना ये है कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट आ गया तो अख्तियार वली की पोजीशन ये नहीं रहेगी जो आज है। मैं आपको ये कहता हूँ कि जब 2018 का इलेक्शन था और मेरे लीडर को जेल में डाल दिया गया था अपने बच्चों समेत, जब 2018 का इलेक्शन था और मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए रात के अंधेरे में और मुझे कहने लगे कि अगर आप नून लीग का टिकट रखेंगे तो आप अगर 3 लाख वोट भी ले लो आप असम्बली में नहीं जाएंगे। तो मैं तो नहीं चाहता, मैं सियासी कारकुन हूँ, हम तो मार खाए हुए लोग हैं। 14 बार मैं जेल गया हूँ जमहूरियत की खातिर। मैं तो खुलकर लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। मतलब तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट आ भी गया बल्ले के निशान पे तो आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अपनी जगह पर, लेकिन मैं नौशहरा की सियासत को, यहाँ के लोगों को, इसमें मेरी हड्डी और मेरा खून शामिल है। मैं लोगों को बेआसरे छोड़ता नहीं हूँ, सैलाब हो। ये तो मैंने देख लिया, लोग बाजार में गलियों में आपका नाम ले रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ एक और बड़ा सियासी वोट बैंक है, वो है JUI का। क्या JUI का वोट बैंक कुछ सरप्राइज कर सकता है आपको? JUI हमारे बिल्कुल अच्छा वोट बैंक है। रिलीजियस फैक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है, हमारे एलाइज हैं। अगर आप देखें तो वो हर सूबाई हलके में 3 से 4-5 हज़ार तक उनका एक वोट बैंक मौजूद है। मुझे क्या सरप्राइज़ करेगा अगर बड़े बैठे हैं, अगर इत्तेहाद हो गया तो कहीं पे अगर उन्होंने हमें स्पेस दे दिया तो दूसरे हलके पे हम उनको स्पेस दे देंगे। अच्छा ये हो सकता है आपके हलके में उनके साथ सेटलमेंट हो सकती है कुछ? अदर मेरे हलके में नहीं, पूरे सूबे में बात हो रही है सीट एडजस्टमेंट की। अदरवाइज़ मैं खुद अल्लाह की मदद के बाद अपनी पब्लिक की खिदमत और उनकी सपोर्ट पर मैं जब भी इलेक्शन लड़ता हूँ मैं अकेले की सोच के लड़ता हूँ। एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर इत्तेहाद नून लीग का और JUI का होता है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। बिकॉज अकेले नून लीग अगर लड़ेगी और कंबाइन लड़ेगी, डेफिनेटली अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी एक होती है, 2 होती है तो उनका जोर ज़्यादा हो जाता है, 3 हो जाती है तो और ज़्यादा हो जाती है। मैं तो अभी भी कहूँगा कि ANP, JUI और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है KPK के लिए। सर ये बताइए, आजकल अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, गैर कानूनी जो अफ़गान थे उनको कहा है कि मुल्क छोड़ दिया जाए। बहुत सारे चले भी गए और जो अभी तक नहीं गए उनको फोर्सफुली भेजा जा रहा है। KPK सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर और KPK के अंदर इलेक्शन को मुतासर कर सकती है? मैं इस पे इस तरह कमेंट करूँगा कि जो अफ़गानिस्तान के यहाँ पे हमारे पास अफ़गानी थे, वो लोग इन्होंने तकरीबन 40-50 साल रहे, लेकिन वो हमारी इकॉनमी पर बहुत बड़ा बोझ थे। दूसरा, चलो वो भी बंदा मिल बांट के वो कर लेता है कि आधी रोटी खा लेंगे, आधी तुम्हारी आधी मेरी, लेकिन जो सहूलतकारी फिर टेररिज्म है अक्रॉस द बॉर्डर इस साइड पर इन्होंने की है, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म। नाकाबिले माफ़ी तो है, बट इस सारे प्रोसेस अगर इलेक्शन के दौरान हुआ तो इलेक्शन मुतासर भी तो हो सकता है, ये एक परसेप्शन है। इलेक्शन मुतासर नहीं होगा। हम समझते हैं कि अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है, इज़ वेरी काइंड, और हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, दे नोज़ हाउ टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर। लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल पे मौलाना फजल रहमान साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, KPK और बलूचिस्तान सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन मौखर करने की भी उन्होंने बात की। तो क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि आप तो कंपेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में फिर रहे हैं? देखें, इलेक्शन मेरे ख्याल में पोस्टपोन करने की तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको सेफ्टी मेजर जो हैं, स्पेशल सेफ्टी मेजर, वो आपको लेने पड़ेंगे और वो लेनी भी चाहिए। तो आई डोंट नो कितने पुर उम्मीद हैं आप NA की सीट के लिए और सूबाई सीट के लिए? दोनों पर 100%। इवन मैं तो एक सीट तो परवेज़ खटक साहब को दे देना सर। वो मैं क्यों दूँ? अगर आवाम नहीं दे रही है मैं क्यों दूँ? पब्लिक नहीं देना चाहती, आप क्यों देना चाह रहे हैं? नहीं, पब्लिक तो दे देगा, ये वाली पब्लिक नहीं देना चाहती। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, अख्तियार वली साहब की बड़ी मेहरबानी कि अपनी कैंपेन में से टाइम निकाला, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के हालात बदले, क्योंकि वोट जो है वो आपका वोट है और उसी ने इस मुल्क के हालात बदलने हैं, और आपका जिसको दिल चाहता है
جس پہ آپ کا ضمیر کہتا ہے, جس نے آپ کے علاقے اور ملک کے لیے بہتری کرنی ہے, اس کو ضرور ووٹ کاسٹ کیجیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.